हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है ट्रायंगल्स। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि भाई ट्रायंगल क्या है, व्हाट इज अ ट्रायंगल। सो ट्रायंगल इट इज अ क्लोज्ड फिगर विच इज फॉर्म्ड बाय इंटरसेक्टिंग ऑफ थ्री लाइंस। लेट अस सी, देखते हैं कि इसको हम कैसे बना सकते हैं। One line, the other line, and this is third line. We can see this is the closed figure. Now it is closed by three sides which are intersecting each other. So it is triangle. Tri means three. Clear? We can write here A, B, C. So a triangle has what? It has three sides, three angles, and three vertices. Three sides, three angles, and three vertices. What are these three sides, three angles, and three vertices? Let us see the figure. Three sides means AB, BC, and AC. Three angles, angle 1, this is angle A, angle B, and angle C. Three vertices, this one A, this one B, and this one C. Understood everybody? So we can say कि एक ट्रायंगल के अंदर आपके थ्री साइड्स होती हैं, यानी कि वो तीन साइड से घिरा हुआ होता है। थ्री एंगल्स, इसमें थ्री एंगल्स बनते हैं जिसको कि मैंने लिखा हुआ है एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, और थ्री वर्टिसेस। वर्टिसेस आप लोगों को एंगल्स में पढ़ाया था कि भाई जहाँ से दोनों कॉमन रेज निकलती हैं, तो टू रेज ओरिजिनेट होती हैं, उनका एक कॉमन ओरिजिन पॉइंट होता है, दैट इज द वर्टेक्स एंड द प्लूरल इज वर्टिसेस। सो नाउ वी विल understand the concept of congruency. What is congruency or what are congruent figures? यानी कि congruent figures क्या होती है, congruency क्या होती है, right? So congruency or congruent figures. We will understand like some examples which we came across in our daily life. बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, उनके थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे कि कॉन्ग्रुएंसी क्या चीज़ है। आपने डेली लाइफ में देखे हैं कि आप डिफरेंट बैंक्स के ATMs होते हैं, ATM कार्ड्स। सो इफ यू प्लेस देम वन ओवर अदर, make a pile of ATMs, they will cover each other completely, like many match box in a box. माचिस की डिब्बियां हैं एक बॉक्स के अंदर, वो सारी अगर एक दूसरे के ऊपर रखेंगे they will cover each other completely, एक दूसरे को कवर कर लेंगे। अगर आप ना एक पेज के पे बहुत सारे सेम रेडियस के सर्कल्स बना लें, उनको कट कर लें और एक दूसरे के ऊपर रख दें, they will cover each other completely. In all these three examples, whether the examples of ATMs, whether the example of match boxes, whether the examples of circles, and whether the examples of bangles, अगर हम बैंगल का एक सेट ले लें, बहुत सारी चूड़ियां एक दूसरे के ऊपर रखते हैं एक ही सेट की, they cover each other. We can say that these figures are congruent figures, right? अगर हम चार स्क्वायर बना रहे हैं, चारों स्क्वायर में सारी साइडें बराबर हैं और चारों को कट करें पेज पे और सबको एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो क्या हो जाएंगे, वो
कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट मीन्स क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट मीन्स होता है इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट। इसका मतलब क्या है? और figures are equal in size and are same in shapes। ऑलराइट, इसका मतलब क्या है भाई कि दो चीजें कॉन्ग्रुएंट है तो क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि वो दोनों का साइज बिल्कुल सेम है और उनका दोनों का शेप भी सेम है, सेम शेप सेम साइज, then we can say the objects are congruent. Likewise, we'll see the example of let us clean something and after that discuss more. So, we'll make some congruent figures. Congruent figures. These are two bangles or two circles of same radii. Like these are the two circles or two bangles which are of same radius, then we can say these are both congruent. If we take two squares, suppose that AB, CD and PQ are S. So these are the squares and having same side 4 4 4 4 4 4 4 4. So they are also congruent figures. Likewise, if we take two triangles, suppose that this is A, B, C and this is P, Q, R. Right? There are many conditions for the congruency of triangles. We will discuss later. बाद में इनको हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं. But if these triangles are congruent, then this triangle will cover this triangle and that triangle will cover this triangle. इसका मतलब ये है कि इसको उठा करके इसके ऊपर हम रख देते हैं तो ये इसको कवर करेगा, या इसको उठा करके इसके ऊपर रख देते हैं तो ये इसको कंप्लीटली कवर करेगा. राइट? सो अगर हम इसको यहाँ पे एक चीज आपको समझने की चीज है कि यहाँ पे 1-1 करेस्पॉन्डेंसी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है ट्रायंगल्स के कॉन्ग्रुएंसी के लिए. इफ ट्रायंगल ABC is congruent to triangle PQR, then what क्या होगा? 1-1 करेस्पॉन्डेंसी कैसे मेंटेन होगी? इसका मतलब ये है कि जो वर्टेक्स A है वो इसके करेस्पॉन्डिंग होगा, यानी कि A करेस्पॉन्डिंग है P के, P जो है ना वो Q के करेस्पॉन्डेंट होगा एंड C दिस इज करेस्पॉन्डिंग टू R. लाइकवाइज अगर हम साइड में 1-1 करेस्पॉन्डेंसी देखेंगे तो साइड का मतलब है कि AB जो है ना वो PQ के करेस्पॉन्डेंट होगी, AB इज करेस्पॉन्डेंट टू PQ, BC is corresponding to QR and AC is corresponding to PR, right? PR. And likewise अगर हम एंगल्स को 1-1 करेस्पॉन्डेंसी देखते हैं तो एंगल A, एंगल P,
एंगल बी, एंगल क्यू, एंड एंगल सी, एंगल आर करस्पॉन्डिंग हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे कंडीशंस ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। तो कंडीशंस ऑफ कॉन्ग्रुएंसी में हम बेसिकली जो हमारी कंडीशंस है वो 5 कंडीशंस है, और वो 5 कंडीशंस क्या है, लेट अस अंडरस्टैंड वन बाय वन, एक एक करके जानेंगे सभी के बारे में। और सबसे पहले तो मैं आपको सारी 5 कंडीशंस बता देता हूं कि भाई कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं, राइट। अब कंडीशंस फॉर ट्रायंगल्स टू बी कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या है कि कौन कौन सी कंडीशंस है जिनके थ्रू जो आपकी कंडीशंस, आपकी जो कॉन्ग्रुएंट है, वो आपके जो ट्रायंगल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। एंड नंबर 1 ये होती है आपकी एस कंडीशन, एस कंडीशन। नंबर 2 ए कंडीशन, या एस कॉन्ग्रुएंसी, राइट। एंड नंबर 3 डबल एस कंडीशन, एंड नंबर 4 ट्रिपल एस कंडीशन, एंड नंबर 5 RHS condition, RHS condition. Okay students, about these 5 conditions we will discuss in our next video. So or listen, first 2 condition I am going to tell you, because the first exercise is based on first 2 conditions. So let us understand in a very short time what is SAS condition first. SAS condition, this is what this is one statement is given in your book. If 2 sides and one angle, one included angle of one triangle is equal to the 2 sides and their included angles of the other triangle, then the triangles are said to be congruent. इसका मतलब क्या है कि अगर ये 2 ट्रायंगल्स आपके हैं, ठीक है, ये है ABC और ये है आपका ट्रायंगल PQR, एंड इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR आपको गिवन है कि भाई AB साइड जो है ना इसके इक्वल है, PQ के इक्वल है, और आपके जो AC साइड है वो किसके इक्वल है, AC इक्वल टू PR, और इनका जो इंक्लूडेड एंगल का मतलब है इन दोनों साइड के बीच का एंगल को हम इंक्लूडेड एंगल बोलते हैं, यानी कि एंगल A इक्वल टू एंगल P गिवन है, देन ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR, और इसको बोलते हैं भाई SAS कंडीशन या कॉन्ग्रुएंस रूल, SAS कंडीशन या कॉन्ग्रुएंस रूल। इसके हेल्प से आप काफी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक दूसरी कंडीशन होती है SAS के अलावा और कोई भी इसकी कंडीशन नहीं हो सकती, ऐसा नहीं हो सकता कि ASS हो जाए या SSA हो जाए, ये दोनों ही आपके गलत माने जाएंगे। SAS का मतलब होता है कि जो 2 साइड इक्वल है, दूसरी 2 साइड के अगले ट्रायंगल की, उनके बीच का एंगल ही बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 साइड अलग बराबर है और एंगल साइड में दे रखा है, दैट इज टोटली रॉन्ग, ऐसी कोई भी कॉन्ग्रुएंसी नहीं होती। अंडरस्टूड। सेकंड कंडीशन मैं आपको जल्दी से बता देता हूं, एंड देन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अपना चैप्टर जो भी एक्सरसाइज 7.1 या 7.2 जो भी है। सेकंड कंडीशन में क्या है भाई, ASA कंडीशन, ASA कंडीशन। तो ASA कंडीशन के लिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले तो हम 2 ट्रायंगल बना लेंगे।
आपके ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, इसका स्टेटमेंट ये है कि भाई इफ टू एंगल्स एंड included side of one triangle is equal to the two angles and included side of the other triangle, then the triangles are said to be congruent। इसका मतलब क्या है भाई कि अगर एक ट्रायंगल के दो एंगल और उसके बीच की साइड किसी दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल और उसके बीच की साइड के बराबर है तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कहे जाएंगे। ऐसे समझिए कि जैसे सपोज दैट एंगल बी इक्वल है इसके क्यू के और सी इक्वल है एंगल आर के, तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल बी इज इक्वल टू है एंगल क्यू के एंड एंगल आपका सी जो है ना किसके इक्वल है एंगल आर के। एंड एक चीज है आपकी बी सी जो साइड है वो किसके इक्वल है, बी सी जो है वो क्यू आर के इक्वल है। Then triangle ABC is congruent to triangle PQR by ASA condition। ठीक है, और यहाँ पे आपने देखा कि ये एंगल इसके इक्वल था, ये एंगल इसके इक्वल था और ये साइड इसके इक्वल थी, और इस प्रकार से दो एंगल और एक साइड बराबर ने दिखाई, इसलिए ये हमारी ASA बनी। लेकिन ASA के अलावा भी इसको हम AS से भी लगा सकते हैं। उसके लिए क्या है कि इसी ट्रायंगल में अगर दो एंगल हमारे ये बराबर हो और साइड इसकी जगह पे कोई दूसरी बराबर हो तो हम उसको AAS कहते हैं, और इसको हम लोग अपने अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। सो फॉर टुडे दिस इज as much what I wanted to tell you, and we'll discuss next thing in our next video. Goodbye.